Morning students. So today we will start with our lecture 7, structure of atom. We have started that electromagnetic radiation can behave as wave like also. Electromagnetic radiation can behave like particle like also. In particle like we have studied black body radiation. We have gone through Planck's quantum theory where he gave us Planck's constant, that is 6.636 into 10 to the power minus 34 joules. Then we have talked about photoelectric effect. We got the equation of photoelectric effect, E is equal to E naught plus kinetic energy, or you can say H nu is equal to H nu naught plus half kinetic energy, where H nu naught is the work function or the minimum threshold energy, minimum energy required to remove the electrons from the metal surface, or you can say it is also known as a work function. Now, explanation of photoelectric effect using quantum theory. So according to Einstein, Einstein was also able to explain the photoelectric effect by using the quantum theory. He said that according to Einstein, when a photon strikes a metal surface, जब एक photon is nothing but a light, strikes on a metal surface, some of its energy is used to eject the electrons from the metal atom. He said that कि जब कोई मेटल पे आपका रे फॉल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, इक्वल टू द एनर्जी बाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस. मतलब जितनी एनर्जी वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के एटम के साथ बाइंड है, एटम्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक साथ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसको उसमें से रिलीज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज अप होगी ही होगी, ऑटोमेटिकली तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है. एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो दिस मे बी एक्सप्रेस्ड एज हाउ ही सेड दैट द एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन, जो एनर्जी एक स्ट्राइकिंग फोटोन की है, इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. This means that a certain minimum amount of energy, there should be a certain minimum amount of energy corresponding to binding energy, also called as threshold energy. उसको हम threshold energy बोलते हैं ना, सेम एक्सप्लेन किया था उसने भी. एंड इज नेसेसरी टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन्स. देयर शुड बी अ मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. Thus, when a photon of energy h nu strikes a metal surface, some of its energy called threshold energy x, अब यहाँ पे threshold energy का x ले रही हूँ मैं, is used up to remove the electrons, and the remaining is imparted to ejected the electrons as kinetic energy, half mv square. Kinetic energy is equal to half mv square, that is mass upon velocity. Therefore, what equation you get? That h nu, the minimum and the energy that a photon carries, is equal to x, that is the minimum energy required to remove the electrons from the metal surface, plus half mv square, the rest of the energy which is converted into kinetic energy. And if the threshold frequency is nu naught, we take, if it according to the Planck's constant, if we take a threshold energy is equal to nu naught, then threshold energy will be what? h nu naught. So मतलब आपका ये जो प्लैंक्स क्वांटम था उसने ये थियोरी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की, और वही चीज़ आइंस्टाइन ने बोला कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, उसने उसको एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्लेन की. सो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग ने एक्स लिया, और अब अगर हम थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो न्यू नॉट ले रही हूँ मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? एच न्यू नॉट. So h nu is equal to h nu naught plus half mv square. Again you got which equation? You got your photoelectric equation, ठीक है. और अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हाफ mv स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, पावर में. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ke इज इक्वल टू h nu माइनस nu नॉट. समझ में आया? So, the minimum energy required to eject the electrons is also called work function, W naught, and it is characteristic for a particular function. हर एक मेटल के लिए सेम मिनिमम एनर्जी नहीं चाहिए, सबके लिए अलग अलग है. जैसे Li के लिए मिनिमम वर्क फंक्शन एनर्जी है 2.42, सोडियम के लिए है 2.3, पोटाशियम के लिए है 2.25, सीशियम के लिए है 2.14, मैग्नीशियम के लिए है 3.17
एंड कॉपर के लिए 4.8, Ag के लिए 4.3 एंड सो ऑन. ओके, सो एज आई एम सेइंग यू हियर कि आइंस्टाइन ने बोला था मेटल, ये मेटल है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट रेज इंसिडेंट लाइट उस पर फॉल होती है ऑफ एच न्यू, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्टेड होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड वर्क फंक्शन एक मिनिमम चाहिए आपको. ठीक है, so before seeing the numericals related to this, I will explain you the observation that was made by this experiment. Experimental fact as discussed in this experiment was, if the frequency of radiation nu is less, अगर frequency of radiation nu less है than nu naught, that is the minimum, तो will the electrons eject? No, no electrons will ejected whatever the intensity of radiation may be. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू है और वो लेस देन न्यू नॉट है, मतलब मिनिमम एनर्जी से लेस है, समझ में आ रहा है, तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, भले ही उसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो. समझ में आया? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट मेटल्स एज आई हैव डिस्कस्ड. सेकेंड, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन इज मोर, जो स्ट्राइकिंग रेडिएशन आ रहा है वो मोर है देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, the excess energy will be converted into kinetic energy. ठीक है, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, बट वापस आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. So thus as the frequency of radiation increases, the kinetic energy of the electrons also increases. I said you it is directly proportional. Okay, next, each photon can eject the electrons on increasing intensity of light at a given frequency, so the number of photons striking the surface is also increased, but the kinetic energy remains the same. क्या बोल रहे हैं कि each photon can eject the electron, हर एक फोटोन, जितने रेज ऑफ लाइट होगी वो हर एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन्स मतलब इजेक्ट करेगा उसके बेसिस पे. सो जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी, सो द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इंक्रीजेस, भी इंक्रीज होता है. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं होगा. ओके, अब एक और चीज़, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt इज कॉल्ड 1 electron volt. व्हाट इज़ 1 electron volt? द एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 EV, 1 electron volt. कभी कभी अभी आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्जन फॉर्म में भी होगा ये. सो व्हाट इज़ 1 EV? द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it is accelerated through a potential difference of 1 volt. ठीक है, that is also known as 1 electron volt, and 1 EV is equal to what? Charge on electron, charge on electron, okay, into 1 volt, into 1 volt. This is, so what is the charge on 1 electron? That is 1.602 into 10 to the power minus 19 C into 1 volt. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में. ठीक है, I hope this is clear to you. So let us see the numericals related to this concept. A 25 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. Rate of emission आपको calculate करना है quanta per second में. So energy of one photon हम find करेंगे, E is equal to h nu. अभी न्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं, बट लैम्डा दिया है, यस. तो E इज इक्वल टू न्यू इज वॉट? C बाय लैम्डा. H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट यू नो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर. लैम्डा, अगर C चेंज होने वाला होगा ना स्पीड ऑफ लाइट, दे विल मेंशन यू इन द न्यूमेरिकल. ओके, लैम्डा माइक्रोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. सब्सटीट्यूट करो, यू गेट द आंसर 3.487 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. Now what you have to calculate the rate of emission per, so number of photons emitted per क्या होता है न्यूमेरिकल, मैंने आपको क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिखवाया था,
इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में, याद करो. सो व्हाट इज़ दैट? नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नथिंग बट नाउ एनर्जी एमिटेड अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. सो एनर्जी एमिटेड इज व्हाट? 25 वोल्ट and energy of per one photon is what you have find out. So what the answer is? 7.17 into 10 to the power 19 second inverse. समझ में आया? अब एक और चीज़ याद रखो, ये न्यूमेरिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में फॉर्म आ सकती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से मेटल का सबसे ज़्यादा इजेक्शन पॉसिबल है. ठीक है. सो मेटल्स हुज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस ओनली शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस है, मतलब व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. जितनी कम आपको उसमें एनर्जी लगेगी वो बहुत अच्छे से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा मैक्सिमम लेवल पे. तो सीशियम डाउन द ग्रुप योर साइज इंक्रीजेस. तो साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना ईजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो शील्ड होते हैं. ठीक है. आउटर मोस्ट शेल इनर शेल से क्या होते हैं? शील्ड होना स्टार्ट कर देते हैं. तो न्यूक्लियस का डायरेक्ट अट्रैक्शन आपका इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचता है. तो डाउन द ग्रुप your ionization enthalpy is low, therefore it shows the maximum. So cesium has the low ionization enthalpy, so it shows the maximum type of photoelectric effect. As if मैंने आपको इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको certain metals के बताए, तो वहाँ पे cesium के 2.14 है. तो उसमें से आपको अगर सोडियम लिथियम पूछा या सीशियम पूछा तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? सीशियम. ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन. So I hope the dual nature is clear to you. कि the dual nature of electromagnetic radiation, it can behaves like your simple wave-like also, particle-like also. Wave-like explains us about reflection, refraction, then your diffraction and interference, and particle-like explain us about the Einstein theory of photons, black body radiations, photoelectric effect and so on. समझ में आया? न्यूमेरिकल भी क्लियर है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A photon of wavelength 4.0 into 10 to the power minus 7 meter strikes on a metal surface. The work function of the metal binding 2.3 electron volt. Calculate the kinetic energy of the photon electron volt, the kinetic energy of the emission and the velocity of the photoelectron emitted. You have to calculate. 1 eV यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है. एनर्जी, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करना है. तो 1 by 1 दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? ई टू एच न्यू. लैम्डा गिवन है तो सी बाय लैम्डा लेंगे. सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज आपको क्या मिल जाएगा? 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एनर्जी इज इक्वल टू 4.197 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 1.60 दैट. क्योंकि एक के लिए इतना है तो इतने के लिए कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग वो डिवीजन में जाता है. तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के टर्म में पूछा है. ठीक है. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन? इसके पहले वाले इक्वेशन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग वाले में ही प्रूव किया था. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एच आप कॉमन में भी ले सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट को, या फिर आप डायरेक्ट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो. अभी हम लोग को यहाँ पे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को एच न्यू पता है. एच न्यू क्या है? ये आपका 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको एच न्यू नॉट मिनिमम दिया हुआ है, दैट इज़ 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया. नेक्स्ट, वेलोसिटी पूछा है. तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, सो 0.97 ev इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूट करोगे पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में. हाफ इंटू एम मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. वेलोसिटी हमको फाइंड करना है.
और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म्स में है, बट हम लोग को ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉर्म में नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जूल्स में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई करके। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस सॉल्व करने पे, तो v अंडर रूट 34 पॉइंट दिस, सो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो जूल नेचर क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज your atomic spectra. Now what is atomic spectra? Let us see. Okay, just listen carefully. When a beam of light from sun is passed through a prism, जब एक beam of light को आप prism से pass करते हो, it splits into a series of color bands known as rainbows of color. ये आपने 10th में आपके फिजिक्स में पढ़ा है रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन में, कि जब सनलाइट या फिर एक सोर्स ऑफ लाइट को पास करते हो आप प्रिज्म से, तो वो कलर्स में स्प्लिट्स होता है, बैंड्स ऑफ कलर्स में स्प्लिट्स होता है, दैट इज नोन एज रेनबोज ऑफ कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऑल्सो नोन एज विबग्रो। विबग्रो बोलते हैं आप उसको, VIBGYOR, ये भी बोलते हैं आप उसको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सो सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जब रेनबो स्काई में बनता है, जैसे अभी मानसून सीजन आ ही रहा है, यू कैन ईजिली सी, ठीक है। This means that sunlight is composed of colors of electromagnetic radiation having different wavelengths, right? हम लोग को यही conclusion मिलता है उससे कि sunlight is composed of collection of electromagnetic radiations of different wavelengths, ठीक है। So the prism bends the light of different wavelengths to different extent. Prism का काम क्या है? Prism उस wavelength को क्या करता है? Bend करता है to bends the light of different wavelengths to different extent. For example, the red color with the longest wavelength is deviated the least. सबसे least होता है red color deviate, while the violet color with the shortest wavelength is deviated the most. ठीक है। So the splitting of light into series of color band is known as dispersion. What does the splitting of light into series of color band is known as dispersion, and the series of color band is called a spectrum. This series of color band is known as spectrum, ठीक है। So in this spectrum there is a continuity of colors, ठीक है। रेनबोज में आप continuity of colors देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते हो कि रेड कलर ऊपर है फिर थोड़ा स्पेस है, फिर आपका ब्लैक कलर है, फिर दूसरा कलर ब्लू कलर है, फिर दूसरा है, नो, यू सी अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। वन कलर मर्जेस इनटू अदर विदाउट एनी गैप और डिसकंटिन्यूटी, सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए स्पेक्ट्रम का भी और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का भी। In the spectrum, there is a continuity of colors, that is one color merges into another without any gap is known as continuous spectrum, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वायलेट कलर मर्जेस इंटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेस इंटू ब्लू, मैं विबग्रो को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, वायलेट मर्ज इंटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेस इंटू ब्लू, ब्लू मर्जेस इंटू ग्रीन एंड सो ऑन। सो द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट, ठीक है। ये हम लाइट से भी ऑब्टेन करते हैं, एमिटेड फ्रॉम सम इनकैंडेसेंट सब्सटेंस, इनकैंडेसेंट सब्सटेंस। आपको इनकैंडेसेंट लाइट था ना, वो बल्ब येलो वाले हीट वाले, तो उस सोर्स ऑफ लाइट को भी मैं अगर प्रिज्म से पास करवाऊंगी तो मुझे ऐसे ही सोर्स ऑफ कलर्स मिलेंगे स्प्लिट होते हुए, ठीक है। जो इनिशियली पहले हम यूज़ करते थे येलो बल्ब्स, अभी तो हम CFLs यूज़ करते हैं, LED बल्ब्स यूज़ करते हैं, बट इनिशियली वो येलो कलर की लाइट्स यूज़ की जाती थी। अभी भी आप देख सकते हो उसको कहीं पे यूज़ होती होंगी, वो हीट ज़्यादा प्रोवाइड करती थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ atomic spectra, unlike the spectrum obtained by analyzing the sunlight, the spectra of atoms are not continuous. जैसे लाइट का एक्सप्लेन किया वैसे ही उन्होंने क्या किया, एटम्स का ट्राई किया स्पेक्ट्रम शो करने का, बट जब एटम्स का स्पेक्ट्रा ऐसे ही सेम वे से ऑब्जर्व किया गया, सो इट वॉज सीन दैट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। सो द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, नाउ व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब समझ में आया होगा ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, वो
ठीक है, जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं वैसे ही हम एटम्स का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसलिए उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोला गया. Atomic spectra. So thus atomic spectra consist of a sharp well-defined lights or band of different definite frequency. So there are two types of atomic spectra, emission spectra and your absorption spectra. कौन से spectra? Emission spectra and absorption spectra. So let us see that. What is emission spectra? So emission spectra are obtained. कब obtained होगा? When the radiation emitted from the substance that have absorbed energy. अच्छे से सुनो, emission spectra are obtained when the radiations emitted from the substance that have absorbed energy either by passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating the substance to high temperature are analyzed with the help of microscope. ये स्पेक्ट्रम आप कब ऑब्जर्व कर सकते हो? जब कोई सोर्स ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर चुका है एनर्जी आइदर इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब या फिर आप उसको हीट कर रहे हो और उसको हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख रहे हो. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ वेरी हाई टेक्निक मेथड. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम इतना डिटेल में उसको स्टडी नहीं करेंगे. हम उसमें वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. उन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मदद से वो कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, वो भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर मुझे कुछ डाटा गिवन होगा कि इसने इतनी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में इतना लाइट एमिट किया है, तो मैं उसका कैलकुलेशन करके स्पेक्ट्रा की मदद से आई कैन फाइंड आउट इट इज़ विच एलिमेंट. एलिमेंट का नाम भी नहीं दिया होगा तो भी मैं उसका एलिमेंट बता सकती हूँ बाय यूजिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. दैट इज़ अ हायर स्टडी, यू विल नॉट स्टडी, इट इज़ इन कम्स इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके, सो atoms, molecules और ions that have absorbed radiation are said to be excited. मतलब क्या कर सकते हैं, सिंपल एटम का नहीं, वो एटम एब्जॉर्ब कर चुका होगा एनर्जी, are known as said to be excited, you know. So for example, when the gas or vapor chemical substance are heated by electrical spark, light is emitted. ठीक है, so the color of the light depends upon the substance under investigation. For example, sodium or salt of sodium gives off yellow light, while potassium or salt of potassium gives you violet color. Depends upon the source of light. So when the radiation, what happens over here, just pay attention. I am taking the example of here in the form of hydrogen का example ले रही हूँ. The emission of spectrum of hydrogen atom. मैंने ये गैस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया है. ठीक है, so what happens, the ray of light pass through a slit, ताकि अच्छे से एक बीम ऑफ लाइट पास हो चुके, स्लिट प्लेस किया है. What happens, प्रिज्म है, प्रिज्म से वो लाइट पास होती है, डेविएट होना स्टार्ट करती है. ठीक है, डेविएट होती है. एंड लाइट स्पेक्ट्रम, ये लाइट्स, ठीक है, तो आप ऐसे टाइप का लाइन स्पेक्ट्रम देख सकते हो. दिस टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम यू कैन ऑब्जर्व एंड दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइट्स विद द डार्क स्पेस बिटवीन देम. स्पेस देख सकते हो विद द lights. This type of emission is known as, this type of spectrum is known as emission line spectrum. ठीक है, red light, yellow light, your blue light, violet light and so on. ठीक है, now pay attention. The emission spectrum absorbed of hydrogen gas at low pressure such consist of light of definite frequency. देख सकते हो lines of definite frequency, red का देख सकते हो, तभी आपको दिख रहा है वो red है क्योंकि उसका definite frequency का wavelength आया होगा. येलो, तभी तो मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ. और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूस में है नहीं, देयर इज अ स्पेस, डार्क लाइन स्पेस बिटवीन देम, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोला गया है. ठीक है, सो द लाइन स्पेक्ट्रम इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. क्यों उसको बोला जाता है? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग द एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम एटम्स. ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और बाय अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब आप ये एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो. द पैटर्न्स ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर एवरी डिफरेंट एलिमेंट. हर एक एटम का एलिमेंट का सेम नहीं होगा. ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, अगर मैं ऑक्सीजन का करूँगी तो मुझे कुछ और वे में मिलेगा. ठीक है, बट ऐसे ही डिसकंटिन्यूस एमिशन की बात करिए, एमिशन स्पेक्ट्रम में तो ऐसे ही मिलेगा डिसकंटिन्यूस वे में, बट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का मिलेगा. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से ईच एलिमेंट्स गिव्स अ यूनिक स्पेक्ट्रम. हर एक एलिमेंट के पास उसका एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज गेट टू लाइन्स एट 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर इन द स्पेक्ट्रम
ऑफ सोडियम वॉट एवर मे बी इट्स सोर्स, ठीक है, उसका सोर्स कुछ भी हो, कोई भी सोर्स से लिया हो, सोडियम का आपको 589 या फिर 589.6 नैनोमीटर पे ही मिलेगा। वैसे ही हाइड्रोजन का कुछ होगा तो उसका इतने पर्टिकुलर नैनोमीटर में ही मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ फॉर द रीज़न दैट लाइन स्पेक्ट्रम आर ऑल्सो रिगार्डेड एज फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम। उनको क्या बोला गया है? फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम्स, क्योंकि हर एक एटम का डिफरेंट है। जैसे हर एक ह्यूमन बींग का डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स है ना, सबका फिंगरप्रिंट सेम होगा? नो। तो सेम वे एमिशन स्पेक्ट्रम की मदद से आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। समझ में आया? So since atoms of different elements give you characteristic sets of lines of definite frequency, emission spectrum can be used in chemical analysis to identify and estimate, as I said you, the elements present in the sample. So the elements rubidium, cesium were discovered by spectral studies. अब rubidium और cesium कैसे डिस्कवर्ड हुआ था? इसी स्पेक्ट्रल सीरीज की मदद से डिस्कवर्ड हुआ था. So I hope emission spectrum is clear to you. Now next type of spectrum is ये आपको मैंने समझा दिया है तो आप ये नोट डाउन करोगे. लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो known as heat, the pattern of line spectrum. ठीक है. Now let us go for atomic spectra. What do you mean by atomic absorption spectra? Second type of. So when a continuous electromagnetic radiation, say white light, now we are talking about white light, is allowed it to pass through a gas or a solution. अब एक लाइट सोर्स लिया और उसको सोल्यूशन से पास करने को ट्राई किया, मे बी सम सॉल्ट सोल्यूशन. अ ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड. क्या करोगे आप? ट्रांसमिटेड लाइट एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे. वी ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन एन अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, and this dark lines indicate that the radiation of corresponding wavelength have been absorbed by the substance from the white light, as shown in the figure में आपको बता रही हूँ. Such spectrum containing a few dark lines due to absorption of light is known as absorption spectrum. उसको हम क्या बोलते हैं? absorption spectrum. यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटल आप ये सनलाइट का सोर्स देख सकते हो. मैंने वाइट लाइट का सोर्स लिया, उसको एक सोल्यूशन से पास किया, सम ट्रांसमिटेड लाइट केम्स, प्रिज्म से डेविएट हुआ, नोट किया, तो आपको कैसे टाइप का स्पेक्ट्रम मिल रहा है. वो जो पहले वाला स्पेक्ट्रम था, ये वाला स्पेक्ट्रम था, चेंज है. उसमें बैकग्राउंड डार्क था और लाइट्स जो लाइन्स आ रही थी वो ब्राइट थी. अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लाइट्स है वो क्या है? ब्लैक आई, और बाकी बैकग्राउंड क्या है आपका? कलर्ड है. So absorption spectrum consists of dark lines in an otherwise continuous spectrum. तो इसमें समझ में आया क्या है? Emission spectrum is obtained when radiations emitted by the excited substance are analyzed with a spectroscopy. ठीक है. Whereas absorption spectrum is obtained when the white light is first passed through a solution. उस solution से वो क्या करेगा? कुछ sort of energy वहाँ पे absorb हो जाएंगी और वो लॉस हो जाएगा, जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में आपको शो नहीं करेगा. ठीक है. सो द डार्क लाइन्स ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ्स आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस. इट मे बी नोटेड दैट दिस डार्क लाइन्स क्यू appears exactly at the same place where the lines in the emission spectrums appear. ठीक है. ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो वो सेम प्लेस में मिलेगा जहाँ पे लाइन्स आपके एमिशन स्पेक्ट्रम में अपियर हुई थी. फॉर एग्जाम्पल द एमिशन स्पेक्ट्रम सोडियम कंसिस्ट टू इम्पॉर्टेंट yellow lines at 589 and 589.6 nanometer. On the other hand, when white light is passed through the vapor of sodium, we get the dark line in the absorption spectrum. मतलब उसने क्या किया? सोडियम क्लोराइड में से सोल्यूशन में से पास किया तो सोडियम ने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है. सेम में मिलता है. सो द स्टडी ऑफ एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड spectroscopy, and this has become very important and essential field for all chemists, and it helps us to identify the study of electronic structure, because the characteristic line in atomic spectrum can be used in chemical analysis to identify the elements. ठीक है. एमिशन मतलब वो एमिट करेगा, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको सोल्यूशन से पास किया तो उस सोल्यूशन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और उसी रेंज में आपको डार्क लाइन्स यहाँ पे दिखाया था, वहाँ पे कोई सोर्स नहीं था इसलिए वहाँ पे येलो दिखाया था. So I hope this concept is clear to you. Okay. In the next class, we will study about emission spectrum of hydrogen atom and Rydberg equation and the numericals related to it. Thank you.